उससे पहले एक चाइनीज आई थी, बट चाइनीज लड़के को मैं कंसिडर नहीं कर सकता एज अ गर्ल। सो वेलकम नेहा, आप भी वेलकम करो कमेंट में। और आज मैं दिखाने वाला हूँ नेहा को एक सॉन्ग जो अभी नेस्कैफे ने रिलीज किया है रिसेंटली। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे को, सो क्या बोलना चाहोगे आप आज? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रे, जो आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया। एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं इस चैनल का पार्ट हूँ। लेट्स सी आगे क्या है। सो आज हम देखने वाले हैं अब्दुल सिद्दीकी का रेसिस्टेंस, और अच्छा होगा आई होप, जिस तरीके से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई होप इट विल ब्लो योर माइंड। सो लेट्स गो एंड वॉच इट। या श्योर। नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5, जागना तो पड़ेगा। Poured my time into a plastic cup and threw it out the window in a parking lot. Never in a moving car anyway. Discard the day. Breaking out the golden cage by taking all gold out of play. Wrap myself a happy ending, tearing out the page. I go. Here I go, running off the stage. I go, here I go. I thought my pain was valid till I felt the resistance. It doesn't suffer fools, break the rules of my existence. I thought my pain was valid till I saw across the distance. I broke the bridge in two, break the rules of my existence. Tell me, where the hell did I go wrong? Keeping my heart locked up so long. Where the hell did I go wrong? Keeping my heart locked up so long. I try to self-destruct, but leave myself intact. I like to dream and I'm not an insomniac. Happy wasn't on the table anyway. Discard the day. Breaking out the golden cage by taking all gold out of play. Write myself a happy ending, tearing out the page. I go. Here I go, suffocate the rage. I go, here I go. I thought my pain was valid till I felt the resistance. It doesn't suffer fools, break the rules of my existence. I thought my pain was valid till I saw across the distance. I broke the bridge in two, break the rules of my existence. Tell me, where the hell did I go wrong? Keeping my heart locked up so long. Where the hell did I go wrong? Keeping my heart locked up so long.
distance. It doesn't suffer fools, break the rules of my existence. Tell me, where the hell did I go wrong? Keeping my heart locked up so long. Where the hell did I go wrong? Keeping my heart locked up so long. Where the hell did I go wrong? Keeping my heart locked up so long. Where the hell did I go wrong? Keeping my heart locked up so long. नेस्कैफे में जो भी किया है सर बहुत आउटस्टैंडिंग किया है। बॉलीवुड से लेकर इस गाने तक हर बार में वैरायटी मिली और सब कुछ अलग था यार। एंड अगर कमेंट करना चाहें अब्दुल्ला सिद्दीकी के ऊपर तो आप देख सकते हैं रिएक्शन के बीच में ही आई ने स्टार्ट कर दिया था सर्च करना अपने लैपटॉप में, बट हम ज्यादा कुछ फाइंड नहीं कर पाए आपके बारे में। अगर आप देख रहे हो अब्दुल्ला तो कमेंट जरूर करना एंड आई विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू एंड बहुत अच्छा लगेगा अगर आपसे बात होगी। तो ये है सिंगर राइटर, इनकी एज जानकर मैं थोड़ा सा हैरान हूँ। He is just 18 guys. Yeah, exactly. He's And just क्या लेवल है इस बंदे का। He's like a western singer की जो लेवल होता है ना ऑलमोस्ट वहाँ पर है। म्यूजिक बहुत आउट क्लास था, इसका प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी थी, ड्रम्स के अंदर भी लाइट्स थी, बहुत कुछ नया था, मेरे लिए बहुत कुछ नया था। आपके लिए क्या था ये? सी जैसे कि हमें पता है कि नेस्कैफे ने एक ना ट्रेंड सेट किया है और नेस्कैफे हमेशा एक नए गाने के साथ आता है और जो उसकी जिस तरीके से वो पूरा गाना बनता है और जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं नेस्कैफे, उनका लेवल ही अलग है। शायद बहुत कम ऐसे सिंगर्स हैं जो नेस्कैफे में गा पाते हैं या उस लेवल को रीच कर पाते हैं। And he's way above that level. Yeah, exactly. And he was nominated for the Lux Style Award as Best Emerging Talent in 2018, and he deserved that. Yeah. And the second thing is कि अब्दुल्ला सिद्दीकी जैसे कि हम सब अभी रे ने आपको बताया कि सिर्फ ये जस्ट 18 years old और 18 साल में जो आवाज में जो दम है, जो खनक है और जिस तरीके से उन्होंने पूरे गाने को गाया, that is totally amazed and outstanding. It reminds me of something like Coldplay. I am not comparing, although they are both different, but एक वो मजा जो आता है ना गाने का वो exactly same है Coldplay। आप उस फ्लो में चले जाते हो रे। अगर आप ये गाना स्टार्ट करते हो ना तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बीट आप उसमें इन्वॉल्व होने लगते हो, इंडल्ज होने लगते हो और वो एक जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करते हुए आप लास्ट में जब गाना खत्म होता है तब आपको होश आता है, वो क्लिक करते हो ओके अब गाना खत्म हो गया। So, इस सॉन्ग के अंदर एक बहुत यूनिक सा एक इंस्ट्रूमेंट था जो इंडिया और पाकिस्तान में बहुत कम यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं लेजर हार्प, जो आपको ग्रीन लेजर्स दिखाएंगे। सो इट इज बेसिकली यूज्ड इन इंग्लिश सॉन्ग्स to make it more amazing, but India में उतना नहीं यूज होता, तो आपके लिए पहले for India and for Pakistan this concept is totally new and you guys will love it. And drum pads भी हम यूज नहीं करते, हम drums basically यूज करते हैं। जो आप drums देख रहे थे they were like drum pads, जो कि ज्यादातर फॉरेन म्यूजिक के अंदर होते हैं। सिंग, कीज एंड वोकेटर एंड बैकिंग वोकल्स थे साद अल हसन, जमल रहमान, जिन्होंने इस गाने के फ्लो को अच्छा बनाया। आई थिंक विदाउट देम अब्दुल कुछ नहीं कर सकते थे। शमशीर भी कीज के ऊपर थे, वो कीज बहुत ब्यूटीफुल थी। अब वो आप महसूस नहीं कर सकते, बहुत लाइटली आपके कानों में जाती हैं, बट दे आर लाइक मेकिंग दिस सॉन्ग मोर अमेजिंग। और अगर आप सॉन्ग्स देखोगे, ये गाना अगर आप देखोगे तो इसमें जो ड्रम जिस तरीके से प्ले किया गया है ना और जिस तरीके से एरॉन डेनियल ने जो ड्रम बजाया है वो बीट्स एक एक चीज को मैच कर रही है। वो अगर शायद वो ड्रम मिसिंग होता ना तो पूरा गाना में भी शायद उतना अच्छा नहीं। और दुलारा भी बहुत अच्छा, दुलारा बहुत कम लोग जानते होंगे दुलारा के बारे में, जिस पर हसन और अली अवान थे, वो गाने को एक बैकअप दे रहा था जो उस गाने को और अच्छा बनाता है। अहमद भट्ट थे लेजर हार्प के ऊपर, सो यू डिड अ ग्रेट जॉब। फरहान अली बेस गिटार, बैकिंग वोकल्स कम थे बट गिटार वाज अमेजिंग। इट वाज लाइक गाने के साथ जा रहा था, शायद लिरिक्स के साथ जा रहा था। एंड अब्दुल्ला का तो क्या कहना, ही इज लाइक अमेजिंग टैलेंटेड गाय। एंड नेस्कैफे इस साल मेरे को बहुत शॉक कर रहा है यार। कोक स्टूडियो के रिएक्शन में मैंने बोल दिया था कि कोक स्टूडियो इस साल इतना अमेजिंग नहीं है, मैं ऐसे चेंज की बात कर रहा था जिसमें लोग समझ नहीं पाए थे। इस तरीके का चेंज नेस्कैफे के अगर आप लास्ट के सीजन्स देखोगे वो अच्छे गाने थे, लेकिन ये एक अच्छा कंसेप्ट है और एक मूविंग फॉरवर्ड है, मतलब फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। नेस्कैफे सिर्फ गानों पे फोकस नहीं करता, बल्कि नेस्कैफे जब भी आता है वो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आता है और यही सबसे अच्छी बात है नेस्कैफे की कि लोग ज्यादा से ज्यादा नेस्कैफे को पसंद करते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वो मेरे वीडियोस देखते हैं, रिप्लाई करते हैं। इवन रिसेंटली हादिया ने भी कमेंट किया है पोल पे, अगर आप जाते हो तो हादिया के कमेंट पे जाके उनको कमेंट करो। ऑफिशियल
चैनल से उन्होंने कमेंट किया था, आई थिंक उनको अच्छा लगा होगा रिएक्शन, दैट्स वाई आप जा सकते हो बोलू रिएक्शन पर, देख सकते हो हादिया का कमेंट, और आई होप अब्दुल्ला भी पसंद करेंगे इस रिएक्शन को। मैं ट्राई करूँगा उनको कॉन्टेक्ट करने का और इंटरव्यू का। आई थिंक हादिया का इंटरव्यू हो सकता है, मैंने रिक्वेस्ट तो किया है आई थिंक उनके फादर से, आई होप जल्दी, उन्होंने बोला था विल डू इट सून। सो आई एम वेरी हैप्पी कि नेस्कैफे की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एंड अभी कुछ और गाने भी हैं नेस्कैफे के, सो आई एम वेरी हैप्पी कि आगे भी कुछ अच्छा। अब्दुल्ला आपने जो गाना गाया है वो काबिले तारीफ है, वी लव and इट, he's a lyricist as well actually, he wrote that लिरिक्स song भी बहुत बखूबी तराशे हैं आपने, तो फॉर मी इट्स अ टोटल थम्स अप, एंड फॉर रे आल्सो लाइक, and I think I'm gonna listen it to this song again and again, तो मैं लिरिक्स भी कैच कर सकूँ, थोड़ा फ्लो भी कैच कर सकूँ। I'm very happy that I watched this and I'm very happy कि नेहा ही को एक अच्छा गाना सुनने को मिला पहली बार में। So how do you feeling, what do you wanna say? सी फॉर मी नेस्कैफे इज सेकंड लव, और नेस्कैफे मुझे हमेशा से इम्प्रेस करता है, और जिस तरीके से नए सिंगर्स इमर्ज होके आते हैं और जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो इट्स टोटली अ फुल पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर मी। मैं इस गाने को, आपने जैसा कहा, मैं खुद इस गाने को बार बार जाऊंगी, बार बार प्ले करूंगी और सुनना चाहूंगी, और इसमें सारी चीजें। आही को लाने का यही रीजन था, आही पुरानी फैन है नेस्कैफे की, मतलब शी नोज कि नेस्कैफे क्या क्या चेंजेस करता है, एंड आई होप हम दोनों पुराने गाने भी सुनेंगे। सो आप लोग बस कमेंट करो, रिक्वेस्ट करो कि नेक्स्ट रिएक्शन किस चीज़ पे होना चाहिए। अगला जो रिएक्शन होगा वो लेटेस्ट वाले सॉन्ग पे होगा जो इसके बाद आया है, उसके बाद हम क्या करें वो आप बता सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। I think आज तो नेहा को बोलना चाहिए, और so don't forget to like, subscribe and share Ray's channel, and don't forget to follow us on Instagram. आही का Instagram handle will be description box के अंदर है, so don't forget to follow us and request us. Thank you so much for watching till the end. Bye bye.